हेलो एवरीवन, इट्स प्रियंका। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक हाउ टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस. So let's understand that what intelligence is. Intelligence is a changeable, flexible ability to learn and stimulate your brain that can improve over time. So where we can see that intelligence is not a fixed substance. We can born with intelligence but also we can increase it over time. तो हम लोग जन्म से इंटेलिजेंस लेके पैदा तो होते हैं बट हम लोग उसको आगे की ज़िंदगी में ज़्यादा कर सकते हैं. So here we will see that what are the key points to increase the intelligence. To practice lifestyle habits that support and protect your brain. तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? We have to maintain that kind of habit that will support and protect our brain. जो हम लोगों के ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा और सपोर्ट करेगा, ऐसा ही हैबिट्स हम लोगों को रखना पड़ेगा. So we can see here there are two types of intelligence. Number one, that is known as the crystallized intelligence. Crystallized intelligence means this refers to your vocabulary, knowledge and skills. Crystallized intelligence typically increases as you get older. तो ये कैसा इंटेलिजेंस है? जो फिक्स्ड है, ठीक है, जो मेमोरी में हम लोग का फिक्स्ड होके रहता है. इट्स इंक्लूड्स द वोकेबुलरी, नॉलेज एंड स्किल्स. एंड जैसे जैसे हम लोग का उम्र होते रहता है हम लोग एक्सेस वोकेबुलरी स्टोर करते हैं, नॉलेज स्टोर करते हैं, एंड दैट्स वाई वी कैन इंक्रीज आवर क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस एज वी गेट ओल्डर. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज द फ्लूइड इंटेलिजेंस. It is also known as the fluid reasoning. Fluid intelligence is your ability to reason and think abstractly. So this is not the fixed one. This is known as the fluid intelligence. तो इसको हम लोग मेमोरी में सेव करके नहीं रख सकते. It depends on the fact. जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. During the examination we have the exam paper. Okay? तो हम लोग तैयार करके जाते हैं questions and answer. तो एग्ज़ाम पेपर पे जो जो क्वेश्चंस हम लोगों को एग्जैक्टली मैच करते हैं हम लोग डायरेक्टली उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देते विथ आवर क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस और आवर मेमोरी. बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आउट ऑफ द पैटर्न होते हैं तो उसको हम लोग मेमोरी से रिकवर नहीं कर सकते. सो देयर वी कैन टेक द हेल्प ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस. उसके हेल्प से हम लोग उसको ईजिली आंसर कर सकते हैं. Now here we can see the points that helps us to increase our intelligence. तो इंटेलिजेंस कोई बॉडी के बाहर का चीज़ नहीं है. इट्स इनसाइड आवर बॉडी. ये हम लोग के ब्रेन में रहता है, ठीक है. तो हम लोग बॉडी को क्या क्या सप्लीमेंट देते हैं? द फूड एंड द ऑक्सीजन. Means digestion and the respiration. These are the main two things that we supply into our body in regular basis. So we should take care these two things first. So number one point is eat nutrient rich foods. There are some example of that kind of food that will help to grow your brain and helps to increase your intelligence. Number one food item is omega-3 fatty acid. It is the major components of the brain structure. Now there are some source of omega-3 fatty acid, that is the fatty fish, shellfish, seafoods, avocados, nuts, etc. And the second item that will increase your intelligence is flavonoids that helps into the neuroprotective benefits. Next, the source of flavonoids are berries, tea, cocoa, soybeans and grains, etc. There are some flatty fish and some shellfish, avocados and some berries, that is the blueberries and strawberries and blackberries. We can eat much more amount of this food nutrients so that we can helps to increase our intelligence. Now the second point to increase our intelligence is meditations. We should meditate in regular basis. So what kind of meditations we can take? Number one is the focused meditations. In this pattern we have to focus in particular one thought or one object. First come with the thought.
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक थॉट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। मतलब कुछ समय तक, लेट्स टेक फॉर 10 मिनट्स, हम लोग एक कोई थॉट लेके उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम लोगों का ब्रेन एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना सीख जाएगा। और अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को अपने सामने रख सकते हैं, उसको स्टेयर करके बैठ सकते हैं ऐसे ही 10 to 15 मिनट्स तक। इससे भी क्या होगा, हम लोगों का ब्रेन कोई एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करना सीख जाएगा। दिस इज नोन एज द फोकस्ड मेडिटेशंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्राणायामा। इसमें हम लोग अपना ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ब्रीथिंग वी कैन इंक्लूड इनटू द प्राणायामा। There are so many types of pranayama, but here we can include the simple one. One is the Bhastrika and second one is the Anulom Vilom. तो भस्त्रिका क्या है, लेट्स सी इनटू द पिक्चर। ये देखिए, ये है भस्त्रिका प्राणायामा। ऐसे बैठकर ज़ोर से फोर्सफुली सांस को लेना है और उसको बाहर छोड़ना है। इससे क्या होगा, हम लोगों का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो एकदम से क्लीन हो जाएगा, ताकि बाहर का जो एयर है वो एकदम ईजिली एंटर कर सके। तो फर्स्ट वी शुड इंक्लूड दिस भस्त्रिका इनटू आवर डेली रूटीन टू कीप आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लीन। एंड द नेक्स्ट वन इज द अनुलोम विलोम। दिस इज द अनुलोम विलोम। इसमें क्या करना है, एक नाक को पकड़ के दूसरे नाक से हम लोगों को सांस लेना है और फिर दूसरे नाक को बंद करके इस नाक से सांस को छोड़ना है, ठीक है। ये दोनों करने से हम लोगों का जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा एंड इट विल हेल्प टू इंक्रीज O2 सप्लीमेंट इनटू आवर ब्रेन। ज़्यादा कर देगा, दैट्स वाई आवर ब्रेन कैन फंक्शन सो ग्रेट वे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ड्रिंक कॉफ़ी और ग्रीन टी, ठीक है। कॉफ़ी और ग्रीन टी में मेनली क्या रहता है, मेनली कॉफ़ी में क्या रहता है, कैफ़ीन रहता है, ठीक है। और ग्रीन टी में भी बहुत कम अमाउंट में कैफ़ीन रहता है, बट वो भी हम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द बेनिफिशियल थिंग ऑफ द कैफ़ीन। एडिनोसिन इज अ ब्रेन केमिकल दैट स्टॉप्स द रिलीज ऑफ स्टिमुलेटरी सब्सटेंस इन योर ब्रेन। However, the caffeine in coffee blocks adenosine, which allows this substance to give you a boost of energy. So, हम लोगों का ब्रेन को क्या चाहिए, एक कांस्टेंट एक स्टिमुलेशन चाहिए, एनर्जी चाहिए टू परफॉर्म वेल। तो एडिनोसिन क्या है, उस स्टिमुलेटरी सब्सटेंस को काम करने के लिए बंद कर देता है। नो कैफीन क्या करता है, उल्टा इस एडिनोसिन को रोक देता है और तो सिंपली क्या हो जाता है, ब्रेन को अपना स्टिमुलेशन मिलता रहता है और वो अपना परफॉर्मेंस अच्छे से कर पाता है। सो वी कैन टेक कॉफ़ी और ग्रीन टी इन अ लिमिटेड अमाउंट सो our brain can function properly. Now the fourth point is exercise regularly. Now staying physically active is one of the best ways to improve brain functioning. तो फिजिकली एक्टिव रहने से क्या होता है, हम लोगों के बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होता है बेस्ट वे में, और जो हार्मोन्स हम लोगों के ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेशन क्रिएट करता है और उसको हेल्दी रखता है टू परफॉर्म। So at first we can start with the easy type of exercise like running or simply walking or free hand exercise। ऐसे से हम लोग शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आगे हम लोग इसको अपने सुविधा के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। Now next the 5 points is continue learning. This is the main key point to increase your intelligence throughout the life. That is the continue learning. इसमें क्या क्या आते हैं, listen to podcast। हम लोग कोई भी ऑडियो वाला जो हम लोगों को मिलता है, कोई बेस्ट सेशन, उसको हम लोग सुन सकते हैं। नेक्स्ट आता है वॉच टेड टॉक्स। टेड एक प्लेटफॉर्म है, उसको उसका जो वीडियो परफॉर्मेंस रहता है उसको हम लोग देख सकते हैं टू इंक्रीज आवर नॉलेज। थर्ड इज़ द अटेंड लेक्चर्स और वर्कशॉप्स। हम लोग वर्कशॉप या लेक्चर का कोई भी सेमिनार अटेंड कर सकते हैं टू इंक्रीज आवर नॉलेज। पिकअप अ न्यू हॉबी, इट कैन ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज आवर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कब बनता है, जब हम कोई भी एक पैटर्न को ब्रेक करते। सिमिलर पैटर्न में अगर हम लोग ज़िंदगी भर काम करते रहे तो क्या होगा, वो सिर्फ मेमोरी में
मतलब एक बैकअप की तरह रह जाएगा, वो हम लोग का इंटेलिजेंस बढ़ाने में कोई हेल्प नहीं करता है. सो वी कैन ऑलवेज ट्राई टू न्यू थिंग टू लर्न. नेक्स्ट वन इज़ द लर्न अ न्यू लैंग्वेज एंड रीड बुक्स ऑन अ न्यू सब्जेक्ट. तो ऐसा कोई भी चीज़, डोंट मेक इट सो बोरिंग, ऐसा कोई भी चीज़ जो आपको अच्छा लगे, वैसा नए नए चीज़ आप सीखते रहिए. एटलीस्ट 3 months में आप एक कोई भी न्यू चीज़ सीख ले. देखिएगा इससे आपका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने स्टार्ट हो जाएगा. So these are the main points. I hope this will help to increase your intelligence in a great way. So I will upload this kind of material in my channel in regular basis. So to get the benefit of that, do subscribe, and thanks for watching.